I am a student. और कुछ चलो एक बार रुको. I am है ना? So I am in, I'm at, I'm on. In का मतलब अंदर at का मतलब ऊपर what is the meaning of at? प्रेजेंट स्थान पे वो At. प्लेस At. एक प्लेस में On का मतलब ऊपर अंदर में नहीं ऊपर आई एम ऑन On? ब्रिज ऊपर ऑन ब्रिज ऑन डेस on. So example बताओ मुझे I am example any example of I am. कोई I am a अच्छा है? student. I'm a student और आई एम मतलब नेम कुछ name. Give me a whole sentence. कुछ name. आई I'm going to school. अरे what? I'm going to school. I'm going to school. ठीक है और आई एम रायहान अलीदवार I was trying to be what? ब्रेक व्हाट Break the words and try to make other person understand what you're saying. यस Okay? मतलब आई एम रायहान अलीदवार I am Ryan. अलीदवार You saying your name. Okay. So always break the word and be loud and clear. ऐसे I am रायहान अलीदवार. Yeah. Be loud. इतना loud नहीं दूसरे की तरफ फाड़ दो. Be loud and be what? Clear. Be clear what you are saying to other person. ठीक है? देखो मत ये मैं सिर्फ basic training दे रही हूँ. Okay. I am हो गया. I'm in. I'm in I Delhi. am in और am. कब बोलो? I am in Delhi. I am in Delhi. आई एम और इन कुछ? दिल्ली और I'm in New Delhi or Delhi. You. आई एम इन क्लास 4 5 4 5 में पढ़ते हो? आई एम नहीं, ऐसे exam में आई एम इन ग्रेजुएशन थर्ड ईयर I'm in graduation. What? Third year. यस I'm in. बोलिए. I am in I am in. Clear or break करो word. I am in a metro. I am in metro. इन ए मेट्रो In metro. और I am in. आई एम इन रिलेशनशिप हट रिलेशनशिप में मत जाएगा. लोग धोखा दे देता है. अरे बाप रे. Okay. Jokes part. I am in. एक और sentence बता दो दोनों के. और ऐसा कि आई एम इन क्लासरूम What? आई एम इन क्लासरूम I'm in classroom. I am in a conversation. I am in a conversation. नहीं होगा. In. Yeah. आई एम I'm having a conversation. तुम बात कर रहे हो. I am in. सर मुझे आइडिया दिया है. कुछ भी बोल दो. इसने बोला I am in class तो present में हो रहा है बता दो. मुझे आइडिया दिया है. Say one word and I'll just start. Yeah. I am in. आई एम इन सिनेमा हॉल और Let him talk. You I am in a shop. I am in shop. दाढ़ी ये बोला. Oh, I'm in the shop. I am in a shop. In हो गया at. One sentence. I am on brains. I'm at. At का use करते हैं. प्लेस के लिए Please. I am at Delhi. तुम दिल्ली में रहते हो ना? In आएगा. At में क्या आएगा? And I am at stand front side of shop. आई एम एट निर्माण विहार I'm at Nirvana. At. In. In आएगा. At. नहीं, I'm नहीं, in. नहीं आएगा. I am in Nirvana. I'm at Nirvana. एट होगा At होगा. ये इन होगा ऐड होगा जब प्रेजेंट में खड़े तो कहिए जैसे कि I am at a shop now. I'm in the place I'm in shop. अंदर होना shop के ऊपर. अंदर नहीं at front of ये मुझे ऐसे तो मालूम नहीं है. Okay. आप ही बताइए. Every time you say a word, do one thing. उसको बोलो और try to think that it सही है कि नहीं है. Then you will try to prove yourself. Okay. So I'm at क्या? हमें नहीं पता. अब बोलो. जैसे मैंने बोला I am at mall. और बोलो. आई एम एट 19 years old इसमें नहीं होता. I am 19 years old. कैसे होता है? आई एम एट निर्माण विहार मैम At निर्वाण विहार. चलो निर्वाण विहार तो बताओ. I am at right step academy. हाँ? I am at
राइट स्टेप एकेडमी। राइट स्टेप एकेडमी, राइट स्टेप एकेडमी। Right प्रॉपर step बोलो, academy. खुल के बोलो, ठीक है? Okay. तुम्हारी तभी सुधरेगी। You will understand it or you will be perfect if you be what? क्लियर इससे Clear. When you say it clearly, you will have a conversation clearly and कॉन्फिडेंटली permanently, कॉन्फिडेंटली confidently. Be confident, don't be nervous and Say fluently. fluent तभी तो आएगा तो ब्रेक करोगे। तो हाल मतलब क्या बोलना करके तो बोलोगे नहीं ना? Okay, so I am good at sentences का पता। I am good at इंग्लिश ना ये ना बोलो English। नहीं बंगाली Okay, तुमने बोल दिया English। बंगाली English को भी लगा दो, सेंटेंस बना दो। I am good at the high jump. I am good at high jump। क्या मतलब? I am good at high jump। और कुछ? I am good. I am good at play हाँ? I am good at football play Play। Playing football. playing football play so I am good at football। good at फुटबॉल तो खेलते हैं हम लोग, तो हाँ। प्ले लगाने की जरूरत क्या है उसमें? ठीक है, ठीक I am है। good at football say it again। I am good at football मैं पहले लिख लेता हूँ लिखना तो लिख लो, कोई बात नहीं। ये लिखना जरूरी है I am good at. तुम अच्छे किस में हो? उसमें देयर भी लिखा हुआ है I am good at। मैं किस में अच्छा हूँ? I am good at my village. मैं किस सब्जेक्ट में Village। I am good at village। कुछ और सेंटेंस बनाओ। That didn't make any sense। I am good at medieval history. I'm good at medieval history हो गया। और कुछ? I am good at writing I'm good at writing। हाँ, writing भी हो गया। I'm good at what? Making fun of everyone। What am I good at? मैंने तुमसे पूछा What are you good at? तुम क्या बताओगे? तुम ये सेंटेंस बोलोगे I am good at। I am good at writing novel. You are good at writing novel। And hey, listen, I'll ask you a question like and what are you good at? मैंने क्वेश्चन पूछा What are you good at? तो क्या बोलोगे? I am good at in push up In नहीं आएगा। I am good at in exercise In नहीं आएगा। In आएगा ही oh नहीं। sorry I am good at exercise At। I am good at exercise Exercise। exercise I am good at exercise। सुन रहे हो जो I am उसको am या I am भूल बोलना पड़ता है ना I am या am बोले mango। नहीं ऐसे नहीं जैसे कि कुछ लैंग्वेज में होता है डायरेक्ट किस करते हैं इसको I am होता है। हाँ I am। ब्रेक करके नहीं बोलते Separate word है ना, I इसको am। ब्रेक नहीं करके बोले तो उसको कैसे कुछ लोग बोलते हैं am। हाँ I am लगा दो कि ब्रेक किया ना, जो भी मैंने यहाँ दिया ना, तो I am। तो make sense, मतलब वो ब्रेक किया तुम लोगों ने, ब्रेक किया ना, तो समझ आ रहा है। am बोलो तो समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। I am. एक सीधी बात होती है। I am and ये होता है am। जैसे कि मैं एक सेंटेंस जैसे कि कुछ फॉरेन लैंग्वेज में यूज करते हैं सिंगापुर उसको सिंगापुर बोलते हैं कभी सिंगापुर। आपको आता है नेक्स्ट में आपको उठा देता है ना उसको सिंगापुर। सिंगापुर सिंगापुर। सिंगापुर तो छोड़ो, पहले I am good at बताओ। I am good at solving math. I am good at shopping। Solving math. Solving math। I'm good at solving maths। I'm good at हिंदी बोलते हैं सॉरी Say it in Hindi, I'll explain it to you। I'm good at eating खाने में से। हाँ खाने का मैं Okay, I'm good at eating। I'm good at eating। मैं eating की तरह हाँ eating In आएगा वो। I'm good at eating। At का होता है जगह, या good at का मतलब कुछ तुम things। At यूज करते हैं things में। जैसे तुमने बोला क्या? Solving math. Good at solving maths। और क्या बोला? और good. I am Good at good at mathematics. I'm good at things हो ना वो mathematics। हाँ। So जो at किससे होता है? Things. Things के लिए, ठीक है? जैसे मैंने तुम्हें पूछा, क्या पूछा? I am in. Okay. I am who are you? मैंने पूछा who are you? तो क्या बताओगे? I am Titan I am Titan cheater? Titan मेरा नाम Teeter। हाँ I am Titan my name is Teeter भी होता है My कभी। name is. नहीं उसने बोला who are you direct पूछा उसने तो what is the name बोलता तो my name is बोलूँगा ना
Who are you? Who are you? कौन हो? हाँ I am teacher I am. teacher Okay. मैंने पूछा I am in. और मतलब मुझे एग्जाम्पल बताओ I am in का क्या बताया था तुम लोगों ने? I am in New Delhi. I am in New Delhi. New Delhi. और एक और बताओ. I am in classroom I am in classroom classroom. ठीक है. I am in classroom and I am in New Delhi. Where do you like? Where are you? बोला मैंने. Where are you from? हाँ? Where are you? कहाँ हो तुम? now I am in classroom. I am in classroom बोलो where are you? कहाँ हो आप? I am in classroom. I am in classroom. Where are you? क्या आएगा? I लेट लगा लिया. I am in mall. मॉल में हो ना अभी अंदर हो ना मॉल में. So I am in mall right now. ठीक है? So where are you मैंने पूछा तो क्या बताओगे? I am in लगाओगे. ठीक है? और दूसरी बोला I am good at. मतलब तुम किसी ने पूछा what are you good at? तुम किस चीज में अच्छे हो? So I am good at. ठीक है? I am क्या? on I am on. The bridge. एग्जाम्पल बताओ. I am on what? I am on bridge. I am on. Bridge. हाँ ब्रिज के ऊपर खड़े. I am on bridge. और एक और बताओ तुम. I am sit on bench I sit on bench bench. Bench नहीं होता bench होता. bench I sit on. bench मैं बेंच पे बैठता हूँ. हाँ एक और बताओ. I am I'm on. झूले में बैठोगे तो झूले को क्या बोलते हैं? मालूम नहीं है Swing. swing Swing. I am on swimming. तो I'm on swing. I'm on swing. एक और बताओ. I am on topic. On I'm this on- topic. Like मैं I'm on this topic. मैं इस topic पे हूँ. I'm on this topic. और I am on conversation I'm on conversation. तुम conversation के ऊपर बैठे ये हो. ऊपर conversation के अंदर बीच में हूँ ना मैं I'm on conversation. तो क्या participate. और बताओ कोई और बताओ. On. Participate बहुत ज़्यादा formal हो जाएगा. Friend के साथ तो formal हो जाता है. एक और बताओ. क्या नाम इसका नाम क्या? Teacher. Teacher. Teacher, tell me one more example for this. I am Basic लगा लो. हाँ वैसे मैंने बताया swing. तुमने I am on the time. I'm on time. On the नहीं बोला. Don't put the the in between. Don't put the in between. I'm what? On. Time. I'm on time. मैं time पे हूँ. मैम I am on work I'm on work. I'm at work. I'm at work. कितनी बार बताऊँ? At work. I'm at work. ठीक है? नहीं मैम उसको तो कौन सी चीज में अच्छे बोल मैंने बताया अभी वर्क में हूँ हाँ? Clear? उसमें तो बोला आपने उस किस चीज में आप अच्छी हो किस चीज में अच्छी हो तो बोला ना पर नॉर्मली एट उसमें मैं बता रही हूँ कि जब सेंटेंस होता है उसमें एट यूज होता है. मैं ये नहीं बताया कि आई एम गुड एट करके नहीं. इसको हटाओ. एट यूजेस में होता है. तुमने अभी सेंटेंस क्या बताया मेरे को? Place. हाँ? At place on any work. आई एम एट वर्क. आई एम ऑन वर्क नहीं. वर्क के ऊपर नहीं बैठे हो. I am on way. क्वे? Way. वे W-A-Y. W A Why? वे वे Way. वे. आई एम ऑन Way. माय वे. माय माय वे और आई एम ऑन वे. ठीक है. ये हो गया. और तुमने जो मेरा पैराग्राफ किया था तुम लोगों को मैंने और भी काम दिया था ना. हाँ. क्या दिया था? इस एक टॉपिक के ऊपर. लिखना. हाँ. I am getting trying I am getting का मतलब क्या होता है? पाना कुछ पाना. trying
am going to. I'm getting, trying, going to. इसका एग्जाम्पल बताओ मेरे को. I am getting my gift. पहले getting कर लेते हैं. चलो. I am Getting my gift. getting my. Gift. I got my gift होता है वहाँ पे. ठीक है. I'm getting my gift भी होता है. मैम. तुम मुझे मिलने वाला है. मैम मैं एक बताऊं. I'm getting a gift. और बोल. I am getting my job, going to home. I'm getting my job, going to home. And going to home. Now then going to home. You're getting a job and then you're going home. हाँ. मतलब समझिए हिंदी में बोलो. मतलब मैं जॉब पाने के बाद घर जाऊंगा. जॉब मिलने के बाद घर जाऊंगा. तुम्हें काम मिल गया? हाँ. I got the job and I'm going back home. तुम्हें मिल गया ना? तुम्हें मिला कि नहीं मिला? तुम जा रहे इंटरव्यू के लिए. You're going for the interview or you're done with the interview? Going for the interview. You're going for the interview. I'm going for my job interview. Then I'll come back home. या मैं तो वापस आ रहा हूँ. Okay? So I'm getting. तुम्हें इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो पता थोड़ी ना कि जॉब मिली जाएगी. वो तो मैं बोल रहा हूँ मुझे जॉब मिल चुका है ऑलरेडी. I got the job. हाँ. I got the job होता है. ठीक है? Getting नहीं होता. Getting में तुम सेंटेंस बता दो मेरे को. I भी करा रहा हूँ. जल्दी बोलो. I am getting highest mark. Getting. I got highest marks. तुम्हें मार्क्स मिल गए ना? तो got नहीं हुआ. I got the highest marks. मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले. Getting वाला. तो ये अच्छा एक बात बताओ. तुम कपड़े जब चेंज करते हो और जब रेडी हो रहे होते थे जाने के लिए तुम बोलते क्या हिंदी में? हिंदी में तो समझ में नहीं आता. Jokes apart, मैं पढ़ा रही हूँ. Focus. तुम्हारा पॉप टेस्ट लूँगी मैं. कभी भी टेस्ट ले लूँगी मैं. ठीक है ना? Be serious. बोलो. पढ़ाने के टाइम में पढ़ा रही होती हूँ. पढ़ाई में ध्यान दिया करो. बोलो. I'm getting. I am getting quickly. Getting quick. I'm getting ready लगा लो. I'm getting ready. मैं तैयार हो रहा हूँ. और कुछ बताओ. खाना बोलो. कैसे लोगे खाना? फूड. इसको कैसे लाओगे? मेरा खाना ले रहा हूँ मैं. तो कैसे बोलोगे? I'm getting it. I'm getting it. I am getting food. Getting my food. खाना अपना ले रहे हो ना? तो किसका ले रहे हो? मेरा ले रहे हो? my ले रहे हो कि your ले रहे हो? किसका ले रहे हो? my. तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? I am getting my food. My food. मैं अपना खाना ले रहा हूँ. मतलब फूड ले रहा हूँ जो भी है. ठीक है? और दूसरा क्या है? I am getting my homework. I'm getting my homework. हाँ मैं अपना होमवर्क ले रहा हूँ. ठीक है? I am क्या है next? Trying. I am trying. Trying का मतलब क्या होगा? I am trying. कोशिश. Try. So I'm trying what? I am trying to best. I'm trying to. Best. But trying my best. My best. Trying my. मैं अपने लिए मेहनत कर रही हूँ. किसी और के लिए तो नहीं कर रहे ना? Trying my Best. best. तुम बताओ कुछ. I am trying the math. I'm trying maths. I'm trying. Math. वैसे practice होता है. Sorry. I'm trying. Solve the math. हाँ? Solve the math. I'm trying to solve the maths. Okay, I'm trying to solve the maths. और कुछ? Trying. कोशिश कर रहा हूँ. I am trying to learning English. I'm trying to learn English. Learn. To learn English. To learn English. और I am trying to buy a new phone. I'm trying to buy what? Buy a new phone. I'm trying to buy a new phone. देखो, improve हो रहे हो ना तुम लोग? Confidence आ रहा है थोड़ा बहुत? कि मतलब पहले दिन की तरह ऐसे बैठे हुए हो. You guys are having a confidence, right? Confidence से boost हो रहा है ना? अब तुम्हें ये सिखाती जा रही. You guys are learning कैसे बोलते हैं sentence को, right? Confidence boost हो रहा है, तो वैसे बोला करो. Speak up, ठीक है? Okay, अब बताओ. I'm trying to. I'm trying to speak in English. I'm trying to speak. 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 I'm trying to speak in English. अब बताओ एक बात बताओ. I am trying to learn cricket. I'm trying to learn cricket. Cricket. और टू को छोड़ के कुछ और लगा दो. टू I'm trying to है ना? टू को हटा दो, कुछ और लगा दो. I'm trying my best. ठीक है? I'm trying my best. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ. I'm trying my best. ठीक है? Okay, so I am going to. I'm going to. Akshay done. You're going to Akshay? No.
अक्षरधाम. Okay, you're going to Akshardham and कुछ और सेंटेंस बताओ. I'm going to class. I'm going to class. आप बताओ. I'm going to book fair. I'm going to Book fair. going to a book fair. Book fair. Okay, और कुछ. I'm going to West Bengal. I'm going to West Bengal. So पता चल गया हम getting कैसे यूज करते हैं. So मुझे कुछ बताओ. What are you doing? ये यूज करो. I'm getting. What are you doing? I'm getting. बोलो. What are you doing? तो I'm getting क्या? कुछ सेंटेंस बनाओ. कुछ ले रहे हो तुम. तो क्या बोलोगे? What are you doing मैंने पूछा. I'm getting English class. I'm getting English class. तुम ले रहे हो उसको. ले रहे हो. और I'm getting क्या? मैंने क्या समझाया था अभी तुमने सेंटेंस ही बोला. What are you doing? I'm getting क्या? Getting का मतलब होता है लेना. Getting लेना. So कोई सेंटेंस बताओ. What are you doing? जैसे आप कुछ ले रहे हो तो बताओगे कैसे उसको. I'm getting food. I'm getting my food. My food. सेंस बनता है ना. I'm getting food भी होता है. Food भी होता है. पर I'm getting my food makes more sense. I'm getting my phone. I'm getting my phone. What are you doing? तो जैसे कुछ कर रहे हो तो I'm getting my phone. I'm getting my food. हो गया. Okay. और कुछ what are you trying to do? What are you trying to do? मतलब what are you trying to do का मतलब क्या हुआ? I'm trying to learn English. What are you trying to do? I am trying to speak in English. I'm trying to speak English. Good. Got it. I'm trying to क्या? I'm going to क्या? I'm going to class. I'm going to class. Where? Okay. Where are you going? जैसे मैंने पूछा. Where are you going? कहाँ जा रहे हो? I am going to home. I'm going home. तू मत करो. I'm going home. तू लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है? तू हटा दो. I am going home. I'm going home. Where are you going? I'm going to write it academy. I'm going to write step academy. जो समझाए क्वेश्चन आंसर समझ आ गए कैसे बोलते हैं? चीज बताती हूँ मैं. इसका मतलब क्या होता है एंड इसका मतलब क्या होता है. डिफरेंस क्या है? उसका मतलब you are. आपके you. डिफरेंस है. यू का मतलब तुम और यू आर तुम. यू आर हु यू आर. ओके सो usage basic use of I have or I want or I got. Yeah, I would like. I would like. Sentence बताने के लिए. I have. What do you have? I have a phone. I have a phone. I have a phone. What do you have? I have a car. I have a car. So तुम्हारे पास वो है. Present मतलब है. I want. What do you want? मैंने पूछा what do you want? I asked you a I question. want to buy a new bike. You want to buy a new bike. जैसे मैंने कितने बार बोला फोन साइड पे रखा करो. I want. I want a new जैसे phone. मैंने पूछा what do you want. ठीक है. What do you want? तुम्हें चाहिए क्या? ठीक है. तो क्या बोलोगे? I want a new job. I want a new job. I want a new job. I got. What do you got? मैं God का मतलब पाना चाहता हूँ कि या मिल. What का मतलब क्या होता है? क्या? नहीं God. God का मतलब जो मिला हो. God. मुझे मिलना है या मिल चुका है क्या? देखो. God का मतलब होता है मिल गया. ठीक है? मिल चुका है already. I got a. Already मिल चुका है. I got a new job. Got a new job. What do you got? I got the graduation degree. You got graduation degree. I would like. What would you like to do? I would like to be a do. good person. One by one. I would like to a good person. I would like to be a good person. Be a good person. तुम्हें अच्छा person बनना है ना. अच्छा इंसान बनना है. So I would like to be a good person. I would like to learn to speak English. What? I would like to learn to speak English. I would like to Speak English. Good English. Sorry. Good English or fluent English. fluent. What would you like to do? I would like to do some dancing and music. I would like to do some dancing and sing. Say.
सुनो गाना बोल क्या बोलते उसको गाना चाहते हो ना यू वांट सिंग तो क्या बोलेंगे Singing. आई वुड लाइक टू सिंग Sing. मुझे आई वुड लाइक टू सिंग मतलब मैं गाना चाहता हूँ या और वन मोर सेंटेंस व्हाट वुड यू लाइक टू डू I would like to do play football. आई वुड लाइक टू प्ले फुटबॉल आई वुड लाइक ब्रेक मत उस टाइम में ब्रेक मत करा करो जब सेंटेंस बोल रहे हो ना तो आई वुड लाइक टू प्ले फुटबॉल ऐसे नहीं मैं वैसे नहीं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तो अटक जा रहा हूँ सोच के बोल रहा हूँ मतलब तो और क्या हो गया आई वुड लाइक टू प्रैक्टिस I would like to I would like to practice और हो गया I would like to thank you मतलब मुझे आपसे मतलब क्या I would like to thank you मतलब क्या होता है I would like to वो क्या like to thank I would like to thank you for whatever you did for me thankful होता है ना नहीं मैं आपको thank you बोलना चाहता हूँ सेंटेंस में बोल दीजिए ना लिख दीजिए ना मुझे समझ में I would like to thank you for whatever you did मतलब बाद में जो भी होता है so I would like to I would like to thank you मैं आपको thank you बोलना चाहता हूँ thank you उसके बाद में बस मैं काफी सेंटेंस बात ओके मैं रीजन तो होगा किसके लिए किस लिए मैं तो रीजन अपना बना लो मेक योर ओन रीजन फाइव मेक योर ओन रीजन थैंक यू फॉर इसमें फॉर दे दूंगा ना फॉर दे दो हाँ, ठीक है उसके बाद मैं लगा दूंगा for what you doing for me. फॉर व्हाटएवर यू डिड फॉर मी और व्हाट यू डिड फॉर मी या व्हाटएवर यू गोइंग टू डू फॉर मी जो भी तुम करने वाले मेरे लिए और कर सकती हो या करना चाहते हो ठीक है सो आई का मतलब समझ आ गया ओके एंड एनीथिंग एल्स कोई वर्ड्स में डिस्कशन कोई वर्ड्स में प्रॉब्लम हो मैम जैसे कि आई वुड लाइक टू का थोड़ा सा अलग होता है यार आई लाइक इसका जैसे कि किसी पर्सन को इंग्लिश करने के लिए जो बोलता है आई लाइक मतलब ब्रो आई वुड लाइक मैं ये करना पसंद करता हूँ मैं करना पसंद करता हूँ और जो मैं कहता हूँ जैसे कि आई लाइक यू जैसे इस थिंग में कुछ डिफरेंट नहीं करना आई लाइक टू क्या मतलब समझिए ना आराम से आई लाइक यू एंड आई लाइक टू डू समथिंग इसमें कोई डिफरेंस है क्या I like you and I want to do something. I like you. हाँ जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आई वुड लाइक टू और आई लाइक यू I like you. ये लोग जा रहे हो थोड़ा हो गया कुछ प्रोफेशनल बात मुझे तुम्हें बताओ नहीं वही कुछ लोग उसमें डिफरेंस है क्या I like you and जैसे किसी भी इंसान को कोई भी कह सकता है जैसे कि आई लाइक यू okay और इसे आई वुड लाइक टू difference है थोड़ा डिफरेंस है difference बहुत difference है there is a vast difference between them. I would like to मतलब मुझे करना मतलब कुछ थिंक के लिए बोल रहे हो हाँ I like you मतलब किसी को तुम मतलब बोल रहे हो कि I like you as a friend ये जो होता है हाँ जो बोलता है वो वो ओके सो ये हो गया आई एम एंड आई यूज मैम इसका पर्सपेक्टिव में जो करना पसंद करता हूँ उसी चीज में यूज होता है जैसे आई कि वुड लाइक टू मैं ये करना चाहता हूँ हाँ। यूज होता है और या तो बोलने जैसे कि वाले मैं जिस चीज में शौकीन हूँ मतलब पसंद करता हूँ करने में I उसे would में like यूज to, होता है मैं ये करना चाहता हूँ या मतलब होता है ना मैं ये करना चाहता हूँ आई वुड लाइक टू डू इट मैं ये करना चाहता हूँ तो करना चाहता हूँ या अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो डिक्शनरी खोलो या गूगल इट एंड ट्राई टू फाइंड मोर सेंटेंसेस दैट हेल्प रिगार्डिंग दिस थिंग ओके सो सेकंड थिंग मैंने तुम लोगों को दिया था काम आई गेव यू गाइस अ टास्क राइट सो गिव मी द टास्क एंड आई विल चेक इट आउट Okay, so give it to me. क्या पूरा पेपर दिखाएगा तुम लोगों नहीं नहीं about farming. मैं थोड़ा उसका समरी लिख दिया है It's fine, मैं समझ बोलूँ. बात है. नहीं मैम वो कुछ अलग कर सकते हैं तो farmer bill. Okay, read this. ये सेंट्रल विस्टा में Central Vista project. Okay, after you start, you read this. Today I am discuss about farm bill. Today, I will discuss about. I will discuss about the farm bill of 2020. India is an agriculture dominant country. This थोड़ा धीरे धीरे आराम से बोलो. आप you are trying to give some information, right? You are trying to give me some information कुछ बारे में बता रहे हो. So थोड़ा खुल के बोलो, slow बोलो, तो दूसरा catch up कर पाए. ठीक है? तुम्हें तो पता तुमने क्या लिखा है. I don't know what you wrote, right? So you have to be slow and you have to make other person understand. Just More than 70% of India's population is either directly or indirectly involved in agriculture. okay. We are eating peacefully because of the hard work of Peacefully.
peacefully. Peacefully. Peacefully. Peacefully. Peace. Peace. Peacefully. Peacefully. Fish नहीं. Peace. नहीं. Peacefully. P-E-A-C-E, peace. Peace. Peace, not fish. Peace. Peacefully. Peacefully. Peacefully because of the hard work of this farmer. Recently, central government has passed the new bill for well-being of farmers and agriculture sector. But farmer and the state government are opposing this bill. Farmers across the country have to protest against this bill in street the road. Punjab and Haryana farmer tractor protest in July was opposing the of this agriculture bill. On 28 August 2020, Punjab Assembly has passed a resolution rejecting the central government's ordinance. Sit. With the Supreme Court two judgment clearing the central vista. मैंने क्या बोला? Be clear and loud. और थोड़ा रोक के बोलो तो दूसरा समझ पाए. With the Supreme Court two judgment clearing the central vista project for New Delhi, the Narendra Modi government can now in building. नरेंद्र मोदी या मिस्टर नरेंद्र मोदी? मिस्टर नहीं इसमें the Narendra Modi government. मिस्टर तो उसको सिर्फ उनको बोलेगा. अच्छा गवर्नमेंट की बात कर. गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट. can now in नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है ना? हाँ नरेंद्र मोदी. हाँ. So the नरेंद्र मिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट. ऐसे नहीं होगा मैम. मिस्टर नरेंद्र मोदी तक हम उनको बोलेंगे. नरेंद्र मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी तक बोलेंगे. Listen, मिस्टर नरेंद्र मोदी नाम आया ना? You got the name? हाँ. उनकी जो गवर्नमेंट है उनका नाम क्या है? गवर्नमेंट उनकी जो गवर्नमेंट का नाम क्या है? उनकी पार्टी का नाम क्या है? बीजेपी है ना? तो बीजेपी डिफरेंट हुआ, नाम डिफरेंट हुआ. They both are different, right? You talking about his government? लेकिन मैम जो आपकी पार्टी है पार्टी का आइडेंटिटी वो नरेंद्र मोदी के नाम पे चले गए इसीलिए उसमें मिस्टर नहीं लगा सकता. तो मिस्टर नरेंद्र मोदी इज गवर्नमेंट. नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लगा दिया. Are you trying to? Indian government. सॉरी ठीक है. You're not listening to me, are you? नरेंद्र मोदी पर्सन है, उसकी गवर्नमेंट है ना? हाँ. उसकी गवर्नमेंट है. हाँ. ही गवर्नमेंट. So you will write मिस्टर, right? तो उसका नाम जो बोल रहे हो, पर्सन का जो नाम बोल रहे हो, उसका आगे मिस्टर तो लगाओगे ना? जब आपको कोई ऑफिशियली बुलाता है तो मिस्टर बोलता है ना? बोलता है नहीं बोलता है? उसकी गवर्नमेंट है ना? उसकी गवर्नमेंट है, उसकी नाम का तो गवर्नमेंट. मैम मैं तो बोल गवर्नमेंट किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता. जैसे कि हम बोल सकते हैं जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट. तो आपने क्या? लेकिन मैम give me the text बता दे. Where is that? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का नाम है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है. लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ मैम जैसे कि हम बोल सकते हैं एनडीए गवर्नमेंट एंड यूपीए गवर्नमेंट. लेकिन अब जो एनडीए गवर्नमेंट है वो पूरा आइडेंटिटी होगा नरेंद्र मोदी के नाम पे. Listen to me. नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट का नाम नरेंद्र मोदी तो नहीं है ना? नाम अलग उनका बीजेपी है ना? अभी जो आइडेंटिटी बन गया वो नरेंद्र मोदी के नाम पे बन गया. किसी चीज का आइडेंटिटी किसी का नाम तो किसी ह्यूमन के ऊपर बना है ना आइडेंटिटी. तो मिस्टर नहीं जाएगा फिर. मिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हुआ कि नहीं हुआ? डज इट मेक सेंस कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट किसी पर्सन का नाम लेते तो मिस्टर तो आगे लगाते हैं ना? उनकी गवर्नमेंट है ना? तो है तो ह्यूमन ना वो चीज थोड़ी ना है. इज नॉट अ गवर्नमेंट. तो थिंग नहीं है ना, इंसान है. तो मिस्टर तो लगेगा ना. अंडरस्टूड? मैंने सोच लिया था कि उसको ही उसका गवर्नमेंट उसके नाम पे थोड़ी ना गवर्नमेंट चल रही है. उनके जो पार्टी है ना, ही इज द रूलिंग पार्टी. ही हैज द रूलिंग पार्टी राइट नाउ. सो हिज नेम फॉर बीजेपी जो चल रही है अभी. जो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में ज्यादा जाती नहीं हूं मैं और आई डोंट रियली नो व्हाट्स गोइंग ऑन बट ही हैज अ पार्टी व्हिच इज बीजेपी, राइट? बीजेपी है जो उसके नाम पे बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है अभी फिलहाल. तो क्या हुआ? मिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट या पार्टी या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट क्या होगा? मिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट. लेकिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी लिखी ना गया. ओके फाइन. रीड इसका प्रोजेक्ट फॉर न्यू दिल्ली मिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कैन नाउ इन दिल्ली मोदीज रिसेप्ट द नेशनल कैपिटल्स. कैपिटल एक ही कैपिटल है ना इंडिया की. तो नेशनल कैपिटल विजुअल लैंडस्केप दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन द हेरिटेज कंजर्वेशन
committee and other bodies, paving the way for new parliament, building and other difficulties of government. Disabilities क्या? Difficulties. Difficulties. Edifice. Give me the word. क्या है? ये वाला edifice. E-D-I-F-I-L-I-E-S. Edificates. Okay. Edifice of government to come up. While the final cost is estimate is unclear, planned expenditure are in excess of 30,450 crore for among other things a new president and prime minister's residence, besides 971 crore for the new parliament. Okay. Next time, remember, every time you take somebody's name, you write Mr. or Mrs. or Miss. अच्छा एक बात बताओ, Mr, Miss and Mrs का difference क्या होता है? मिस्टर मिस्टर का मतलब वो शादी नहीं किया मिस्टर English. Misters mean he did not get married and misters mean he Misters या Mr. मिसेस misters Mr. What does the mean? What does Mr mean? Where do we use mister mean a single person who did not get married. Okay, and if the person is married, what does he put then? What does he put? If the guy is married, कोई तुमने बोला जो सिंगल लोग होते हैं वो मिस्टर यूज करते हैं, ठीक है? अगर वो इंसान मैरिड है तो क्या यूज करेंगे? Misters Misters. Mister is always used चाहे वो married हो या he unmarried, ठीक है? Mister is used when he is married or unmarried, a ठीक male है? person for male person. That's not a good habit. Don't do that. Don't make your nose run. Mister misters कब होता है? When do we use Mister? On a man who is married or unmarried, ठीक है? बैठ जाओ. other miss Miss, where do we use Miss? Miss female person A woman or woman who is not married, जो married नहीं है. And where do we use Mrs? Mrs जब married हो जाता है तब When she is married or the woman is married, we use इसमें diffuse हो गया diffuse हो गया. Bomb है diffuse हो गया. Okay. Mister is when the guy is married or unmarried. You can use in both. ठीक है? Miss हो गया when the girl is not married. ठीक है? And Mrs कब होगा? When she is married. So there is difference. फीमेल And के लिए मैम फीमेल के लिए दो पार्ट बांटा है ना discrimination. दो पार्ट बांटा दिया मैम हमारे लिए We use Mr. if he's married or not, Miss when she's not married, and Mrs. when she's married. Okay? So we know the difference. Okay? difference समझ आ गया? और तुमने जो बोला था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी एंड गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है ना, तो he is a person. पर्सन क्या क्या रहेगा? मैम वो इसलिए दान नरेंद्र मोदी लगाया क्योंकि इंडिकेट करके वो जैसे कि उसको पर्सनली बोला द इंडिकेट तो वही नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट दान नरेंद्र मोदी लगाते हैं जब गवर्नमेंट होती है तो उसमें एक थोड़ी ना करता है, थोड़ी ना एक जो इंसान होता करता है. There are so many people in the party or in the government. एक से तो गवर्नमेंट नहीं चलती ना. We need bills or we need somebody collector. Like there's different. मैं इंडिकेट करके बोल रहा था वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने किया English, please. I said that they indicate the Narendra Modi's government and not other government. उसकी गवर्नमेंट बोली ना आपने बोलने के लिए, तो you said his government. So नरेंद्र मोदी's government. Mr. उसकी गवर्नमेंट है ना, तो Mr. आएगा. And else क्या बोलते हैं? Always use Mr, Miss और Mrs. Every time we say somebody's name. जैसे आपका नाम क्या है? टीटर. तो what is your name? तो full form के full कैसे बताओगे? पूरा नाम कैसे बताओगे? My name is Titar Kumar sir. My name is Raihan Ali John. Okay, so well, जब मैं आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, so क्या हुआ? His name is Mr. Teeter. So Mr. या Mrs. लगता है. It's official. Official भी लगा लो या किसी से first time मिल रहे होते हो, so try to use that. It's more like a gentle way and sweet. Respectful. Always be respectful to people. ठीक है? Mr. and Mrs. is like official thing, but to be more respectful. ठीक है? समझ आ गया Mr. Mrs. Miss में difference? और तुम जो मेरे से अभी डिस्कशन कर रहे थे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से नरेंद्र मोदी की तो नहीं है ना, उसका उनका पार्टी का नाम है ना, क्या नाम है उनकी पार्टी? भारत जनता पार्टी. बीजेपी समथिंग. तो बीजेपी है.
तो उनकी उनकी उसकी पार्टी की है ना, वो पार्टी की है, तो गवर्नमेंट अलग हुई और नाम अलग हुआ उनके। गवर्नमेंट किसी की नहीं होती नॉर्मली, बताओ। गवर्नमेंट होती है जो इलेक्ट किया जाता है, हम जो इलेक्ट करते हैं जिन्हें, तो वो गवर्नमेंट चलाते हैं। जो गवर्नमेंट एंड नरेंद्र मोदी आर डिफरेंट, वो चला रहे हैं। नहीं मैम, मैं कह रहा था जैसे कि आप बताइए शांति निकेतन यूनिवर्सिटी है, द बेंगल्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, Okay, शांति निकेतन is a university. दिस आइडेंटिटी बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। नरेंद्र क्या? वो जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का आइडेंटिटी खुद रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने को फॉर्म किया था। हाँ, तो को फॉर्म किया था उन्होंने, हाँ। को फॉर्म किया था, तो हाँ, क्या इसके नाम पे वो आइडेंटिटी चल रहा है। आइडेंटिटी चल रही है ना। हाँ। पर क्या जैसे कि बिल्डिंग अलग है, वो अलग इंसान अलग है ना। मिस्टर नरेंद्र क्या है, टैगोर जो मिस्टर टैगोर जो भी है वो अलग है ना। लेकिन मैम टैगोर के पेन मिस्टर नहीं लगा सकते आप। ओके, वो सबके अपने बिलीफ होते हैं, ठीक है। ही पास्ट अवे लॉन्ग टाइम अगो, ओके। मैं एग्जांपल दे रही हूँ। बिल्डिंग जो भी शांति निकेतन आपने बोला बिल्डिंग है, और जो टैगोर आपने बोला वो अलग है। ह्यूमन एंड बिल्डिंग, राइट। उनकी बिल्डिंग है, समझ गई, पर मिस्टर तो लगाना पड़ेगा ना आपको। जैसे टैगोर में तो लगाते नहीं, क्योंकि ही वाज वन ऑफ द यू नो लाइक फेमस, क्या थे वो, पोएट, राइटर और Nobel Prize. नोबेल प्राइज विनर। he was one of the best Poet. writer. He used to poet. राइटर ऑफ इंडिया एंथम। So he passed away, but still, if he was a normal person, we would use Mr. So always use Mr. when you talk to somebody, like if you're introducing somebody else, or किसी का नाम आप ले रहे हो, ठीक है? It's more like polite way. Polite way होता है, gentle way होता है। क्योंकि आप सीधा तो नहीं बोल सकते ना, his name is Bittu. रूड हुआ। His name is Bittu या Bittu क्या था? टीटर। इसका नाम है टीटर, ठीक है। मैं बोला his name is टीटर, रूड हुआ थोड़ा। जब अच्छा मैम, जब मैं His name is Mr. T. मैं कह रहा हूँ, जब आपको किसी के सामने आइडेंटिटी दूंगा, मैं स्टूडेंट हूँ, आप टीचर है, Okay. तो उसपे तो मिस्टर नहीं लेता। इस मैम नेम इज स्वाति, हमको तो मैम बोलना पड़ेगा ना रिस्पेक्ट के लिए। मिस्टर मिसेस तो नहीं लगा सकते हम स्टूडेंट है, और एक स्टूडेंट को आइडेंटिटी दे रहे हैं आपके। You are giving me introduction, तुम मेरा इंट्रोडक्शन किसको दे रहे हो, तो क्या बोलोगे? तो मैम Okay, that's some you are introducing me to him. हाँ। तुम इसको बता रहे हो मैं कौन, चलो बताओ। मैम नेम इज स्वाति, इज अ गुड टीचर इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड समझिए। मैं कह रहा हूँ आपके नाम के पहले तो मैम लगा होगा ना। हर जरूरी नहीं है। Miss. मिस बोलो फिर से। अब दोनों बोलो, जैसे तुमने पहले बोला मैम स्वाति बोला ना, तो बोलो, उनको बोलो फिर से। उन सही है, मत रिपीट। मैम स्वाति एंड ही इज गुड टीचर इन ओके, और मैंने जो बोला अभी मिस स्वाति बोलो। इज मिस स्वाति एंड गुड इन इंग्लिश। सो दोनों में से बेटर कौन सा है? Miss is the respectful. मिस। तुम मैम बोलोगे उससे बेटर है मिस स्वाति एंड शी इज अ टीचर, राइट। तो टीचर है, शी इज माय टीचर और टीचर या शी टीच, ठीक है। इंट्रोडक्शन पहले नाम बताओगे ना, मिस स्वाति, तभी तो बताओगे करती क्या हूँ। तो मैम स्वाति, अब मैम तो कुछ भी हो सकता है ना। सो क्या मिस, मिसेस, मिस्टर, always try to keep the name when you're introducing somebody else, okay? Yes. Phone, you're using phone. मैसेज आया था। 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें फोन चलाओगे तो फिर ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक इंग्लिश एंड हाउ टू क्या Everything is spoken in the motivational speech. मोटिवेशनल स्पीच। Yes. अच्छा ये बताओ, व्हाट इज वोकैबुलरी? Vocabulary is the basket of word. वोकैबुलरी हम कर रहे हैं क्योंकि ये जो आया है उसका, ठीक है। सो ओके, वन बाय वन क्या, वन बाय वन इंट्रोडक्शन दो इन इंग्लिश, वन बाय वन। My name is Titan Kumar Vishwas. I am from West Bengal. I am complete in my graduation degree. I have completed I have completed my graduation degree and I am coming in Delhi for. And I came here in Delhi. I came. आ गए ना? I came in Delhi for preparing UPSC Civil Service examination. Okay. And I am our family is 4 member
include it with me. Include Include with me. 4 family members. हाँ, And include with me. okay. And that's it. Very good. तुम बोलो. First up, thank you to all. Don't be few non अपना introduction. I am basically from West Bengal. I am from West Bengal. भी बोल सकते हैं. Basically ज़्यादा ऊपर. I am from West Bengal and stay in Delhi for So study. introduction का टाइम में अपना नेम नहीं बताओगे. Oh, sorry. My name is Ranihan Ali Dewar. I am from West Bengal and staying in Delhi for study purpose. Okay. For study purpose. I did my graduation from Gurgaon University and we are 5 members And there are 5 members in my family, including me. And And what? That's it. और कुछ नहीं. Okay, sir. एक बात बताओ मुझे. Come and came. में difference क्या होता है? हम came मतलब present यार, came past हो चुका है. This past and present. Past and present. ठीक है. और कुछ बताओ मुझे. Got, get, and getting. Got मतलब present में तो मिल गया. अभी मिला मुझे. Get. Get मिल चुका है मुझे already. अच्छा फिर getting क्या है? मिले वो उसका फाउंड उसका ING लगा हुआ मिल रहा है. Getting. तुम्हें मिल रहा है. हाँ. तुम्हें मिलेगा. तुम्हें मिल चुका है. ठीक है? तो tomorrow do one thing. जो भी मैं next class में बोलूँगी. कब next class कब है? मतलब एक दिन बाद होगा. आज क्या Sunday है. Friday है. Friday. So Monday. Monday. So do one thing. Write 5 what? Past, present, and future. Past tense, present tense, and future tense जो भी होता है. जैसे got, get, getting, या come, came. जो होता है ना? Write 6 or 7 of them. Okay? And और क्या है? रीडिंग कैसे करते हैं? book ले क्या है? लाए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है. एनवायरनमेंट. मैं एक चीज जैसे कि इस चीज को एक ही बार पढ़ूंगा मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए. मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं होता कभी. When you don't understand something, just take out your phone or dictionary and try to find the word and what does that mean. Simple. ठीक है? Okay. To tribute to the great author. मैं बता दूँ कैसे पढ़ते हैं. ठीक है? Born in February 1910, he actively carried on research till age of 87, producing creative literature almost every quarter of year. Political science and regional, yeah. समझ आ रहा है कुछ? ब्रेक कर रही हूँ मैं? अटक रही हूँ मैं? अटक रही हूँ? नहीं. नॉर्मल जो बोल रही हूँ मैं अटक रही हूँ? नहीं बोल रही, नहीं अटक रही ना? समझ आ रहा है ब्रेक कर रही हूँ ना? So, he is remembered as a legend in the world of laws and his status as an eminent jurist has been acknowledged by the government of India by appointing him a full-time member of the Union Law Commission and a judge of Calcutta High Court on a category of eminent jurist by conferring upon him the National Award, Padma Bhushan and National Research प्रोफेसर. ओके तो क्या हुआ समझे? मैंने बोला ब्रेक कर रही हूँ. लेकिन मैं एक बात बताऊँ. आप ब्रेक भी कर रहे हैं लेकिन आपको रनिंग भी है. लेकिन हम जब ब्रेक करके बोलते हैं ना तो फ्लो हो जाता है. प्रैक्टिस करो. रीडिंग जैसे कि आप रीडिंग किया ठीक है. वो ब्रेक भी है समझ भी जा रहे हैं लेकिन रनिंग भी है. रीडिंग करते हैं लेकिन मन में जब लाउड करके नहीं करना. मैंने रीडिंग के चैप्टर में क्या पढ़ा था? राइटिंग के रीडिंग के चैप्टर में फॉर द पॉइंट रीडिंग लाउड. रीड लाउड करो फिर समझ आएगा तुम्हें तुम बोल क्या रहे हो. क्योंकि तुम्हें फिर बैठने जैसे तुम पढ़ने की तुम्हारी आदत हो जाएगी ना. सो यू नो व्हाट्स द नेक्स्ट वर्ड. ओके यू नो द व्हाट्स द नेक्स्ट वर्ड. ठीक है? ये कौन सी बुक है? इट्स अ नोवेल डेल ब्रेकर. सो ये वाला स्पॉटिफाई वाला मुझे थोड़ा व्हाट रीडिंग करो. रीडिंग ट्राई टू रीड एवरी डे
It will improve your English and your reading skills. ठीक है? और क्या समझा रहा हूँ मैंने लेक्चर्स क्या बताया था आपको? स्टार्टिंग फर्स्ट डे से क्या बता रहा है? लिसनिंग, रीडिंग और क्या बताया? स्पीकिंग। तीन बताया ना? So what's in reading? What are good points for reading? How can we improve reading skills? How can we improve reading skills? How can we improve? At first, read. I'm start now. Yeah, every day read. उसको क्या बोलते हैं ना? To read every day To read every day and loudly. and loudly. Okay, you And a target fixed to your study task. study task. Study task मतलब समझे नहीं? वैसे कोई सीटा मतलब No, I'm asking him. Every time somebody is talking, don't interrupt. We are talking, right? मैंने क्या बताया था listening के time पे? Don't. When you listen, or your two people are talking, don't talk in between. ठीक है? पहले बात कंप्लीट कर दो, फिर तुम ओपन रखो या तुम हाथ खड़ा करो या मैम नहीं बोल रहा है, ओके? बोलो। Target your study task. Target your study पे मतलब टारगेट करना ना मतलब इतना टारगेट मुझे सेट करना सेट अ गोल टास्क नहीं बोलोगे सेट अ गोल Set a goal. और तुम नेक्स्ट Denote some word and what you did not understand and then search the meaning of this word and gain vocabulary. जैसे कि मैं रीड कर रहा हूँ उस वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा उनको मार्क करो उसके बाद उसके वर्ड सर्च करो सर्च द वर्ड एंड सी व्हाट इट मींस ठीक है सो दैट्स द वर्ड मैंने टास्क क्या दिया तुम लोगों को प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टेंस करना है ठीक है एंड कुछ और लिख के आओ ठीक है एंड क्या आके सुनाओ ओके क्लास ओवर जाओ